Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. A very warm welcome to the big show, and also thank you very much for tuning into ITU FM 90.4 and for watching this space. As promised, हमारी कोशिश होती है कि जहां बेहतरीन कंटेंट हम आप लोगों तक लाएं, वहीं पर हमारी कोशिश होती है कि हम बेहतर से बेहतरीन गेस्ट से आप लोगों की मुलाकात करवाएं. Obviously, the gain is ours, the gain is yours as well. हमें कुछ नया सीखने को मिलता है, हमें बहुत से उनके इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस सुनने को मिलते हैं. साथ ही साथ हम चाहते हैं कि ये आप लोगों तक भी पहुंचाएं, not only in our voices through the airwaves of 90.4 but also through our podcast as well. Without further delay, I would love to welcome our special guest today to the show. हमारे साथ जनाब स्टूडियो में मौजूद हैं द साहिर लोधी. होस्ट हैं, डायरेक्टर हैं. ऐसा नाम है कि जिसको ज़्यादा मुझे तारीफ और तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है. Everybody knows him. और इनके बारे में भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं. तो आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सिमल, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. आपके इंट्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट शायद मैं मिस कर गई. क्या? Which is that you are a PhD scholar in astrophysics as well. No, I'm doing my PhD. Okay. I will be, shall be. Scholar बहुत बड़ा word होता है, तो I don't use that. But I'm finishing up my PhD in astrophysics. तो वो मैं research is continuing. तो I think year and a half, 2 years I think is left. और उसके बाद इंशाल्लाह ताला I shall be a PhD. लेकिन PhD तो सिर्फ एक वो है ना, डिग्री है. असल तो नॉलेज है जिसको आप सीख करते हैं. Absolutely. So And that's a never-ending process. Never-ending process. You're always learning. You're always learning. No matter what you do in life, I think one thing I've always, and this I drew from my mother and my father both, that learning never stops. आपको हमेशा पढ़ना है, हमेशा लिखना है. I've done my master's in neurolinguistic programming. Then I've got another master's in petroleum engineering. I used to work for Halliburton as a petroleum engineer. Excellent. Or then I've got a bachelor's in geology, chemistry, and physics. So I've been studying. I'm a perpetual student. I think I've never stopped learning. Never. I think all these details make us look forward to today's session all the more, and not just this, because you know we're sitting in Information Technology University और हमारा ये जो community campus radio है, इसका मकसद भी कुछ हद तक यही था कि अपने students के लिए हम कुछ नया लाएं, different लाएं, useful, informative shows लाएं, मगर एक entertaining तरीके से लाएं, so you know the absorption gets much higher and much better. So I cannot think of a better guest for ITU FM today or any other day than you. Well, I hope कि मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं. मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा entertainment मुझ में बची है. It's been years that I've been working. I think gradually I think आपका shift आ जाता है. तो वो gradual shift जो है वो मुझ में भी आया है. I think I have no questions about life anymore. I've got no answers for anyone. I just live my life and I'm content with it. So I think I don't know how much entertaining I'll be, but yeah, shoot. We're very confident that you'll be, inshallah. Okay, inshallah. Before any show, before obviously any guest as important comes to our show, अब सभी की कोशिश होती है, सारे टीम मेंबर्स की भी, मेरी भी, that we have to do our best. मगर मेरे लिए एक additional element उसमें anxiety का कह लें, conscious होने का कह लें, ये ज़रूर होता है that when I'm interviewing a host, somebody who's been on this side and who's especially so good at it. तो मैं तो आज थोड़ी सी एक्स्ट्रा परेशान ज़रूर थी इस हवाले से. But how does it feel for you to be on the other side? Because usually you're the one asking questions, you're the host wherever you are. अच्छा, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ, इसलिए मेरे लिए कभी एंग्जाइटी का कोई एलिमेंट रहा ही नहीं है, ना होस्ट करते वक्त ना गेस्ट होते वक्त. आई थिंक I'm very grounded in that sense because मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई ऐसा कारनामा अंजाम नहीं दिया जिसकी बुनियाद पे लोग मुझसे सवालात करें. I happen to be in the right place in the right time. तो आई थिंक थोड़े बहुत 2-4 लोग मुझे जानने लगे, तो ये मुझे मौका मिल गया कि मैं लोगों के सामने बैठ के गेस्ट भी बन सकूं. अदरवाइज आई थिंक ये जो आपकी वाली साइड है ये बहुत एक्साइटिंग होती है. ये बहुत एक्साइटिंग होती है बिकॉज यू गेट टू लर्न सो मच अबाउट दिस पर्सन दैट यू आर इंटरव्यूइंग विद, और यू गेट टू लर्न सो मच अबाउट लाइफ विद अदर्स एक्सपीरियंसेस. तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत एक्साइटिंग होता है. ये तो बड़े ऑनर की बात होती है जो आप मुझे दे रहे हो, बट आई डोंट फील दैट मुझे मैं आई थिंक आई एम ओके विद इट. It's nice to be on this side, but I think I always prefer that side. just यहाँ पर आप बैठी हैं वो ज़्यादा बेहतर है. I believe that. You are currently hosting a morning show and a radio show.
एंड रेडियो शो हाँ, वो तो आप सब कुछ मिस आउट कर जाए मेरी लाइफ में, रेडियो को मिस मत कीजिएगा। नहीं, रेडियो के हमारे एक्चुअली तरतीब में सवाल थे। पहले मैं चाह रही थी कुछ मॉर्निंग शो के हवाले से बात करूं, फिर रेडियो की तरफ मैं खुद नहीं मिस आउट करूंगी। आई वुड डेफिनेटली कम टुवर्ड्स दैट एज वेल। एंड नॉट जस्ट दिस शो, यू हैव बीन होस्टिंग मॉर्निंग शोज फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ, आई बिलीव। I've been hosting shows. मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता when you label the host as I was the guy who started, invented, initiated the late night shows. Right. वो सारा ट्रेंड मैंने शुरू किया। और मैंने क्या मतलब, मेरी टीम ने शुरू किया, हम सब ने मिलकर शुरू किया। तो टू मी आई थिंक ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट है that you label someone that okay he is a morning show host or he is a late night show host. No, he's a game show host. No, you're a host. You're a host. No matter what you do. अब हम लोग late night show का प्लान कर रहे हैं, and I think by January we're going to launch that, and it's going to be a different late night show. Not the one that I used to do, but something else. लेकिन I feel equally excited hosting a late night show or a morning show, whatever, because if you're a broadcaster, if you're a host, then you're a host. You're always a host. Absolutely. तो वो मेरे ख्याल में मुझे अच्छा लगता है जब मैं ये सब कुछ करता हूँ. The day that I'm going to not like doing this, I think I'll quit. How do you view the evolution of shows? चलिए मैं morning shows दोबारा नहीं repeat करती over the years, because you know they've had their peak popularities. There was a morning show going on every channel. फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ खत्म हुए. There were faces that were replaced. देखें, we were liars and we are liars. We are hypocrites. सिंपल सी बात है. हम वो कंटेंट, हमारा टिकटॉक देख लीजिए, सारे लगे पड़े होते हैं कि जी इसको बंद करना चाहिए, सब देख रहे होते हैं. You're not, मैं टिकटॉक नहीं देखता बिकॉज मुझे पसंद नहीं है. इट्स नॉट कि एनीथिंग, आई एम नॉट लाइक दैट. मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ बिकॉज मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ. ठीक है, तो हम झूठ बोलते हैं. हमने डिलिबरेटली एक चीज़ को तबाह किया. क्या हमारी शादियों में गाने नहीं होते? क्या हमारी शादियों में डांसेस नहीं होते? क्या हम झूठ इस कदर बोलते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है. हम दोहरे मेयार के लोग हैं. आई एम वेरी सॉरी. सो इट्स ऑल रबिश व्हेन पीपल से कि जी ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया. नहीं, ऐसा हुआ नहीं है. इंटेंशनली आपने ऐसा किया है. बिकॉज आपके लिए मैं आपको बहुत एक छोटी सी मिसाल देता हूँ. लेट्स से कि आप इंडियन कोई भी फिल्म देखते हैं और उसमें किसी भी किस्म के कोई भी ड्रेस कोई भी खातून पहन लें. यू आर नेवर गोइंग टू ऑब्जेक्ट टू इट. बट लेट्स से कि ज़रा सा कुछ हो जाए और हमारी जो एक पुलिस है, एक ब्रिगेड जो है, एथिकल ब्रिगेड, एथिकल पुलिस जो है, वो खड़ी हो जाती है और वो उठा के बातें करने लगती है. तो टू मी आई थिंक हम हिपोक्रेसी का शिकार हैं हर मामले में. हमने देखनी भी वही चीज़ है जो फॉरबिडन है, हमने देखना भी वही है. हम बकवास करते हैं, झूठ बोलते हैं. आप उठा के आप अच्छी बात कीजिए, मैं अच्छी बात करता हूं, यहाँ 1 घंटे कोई नहीं देखेगा. 4 आपके व्यूज आएंगे, 25 व्यूज आ जाएंगे. आप कोई ना कोई चीज मेरी ही चीज से निकाल के उसको वायरल कर देंगे. यू नो व्हाई? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. यू नो व्हाई? बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत है. एंड वी लायर्स. हम पूरी सोसाइटी हिपोक्रेसी पे मबनी है. इमेजिन दिस. आप कहते हैं जी वेस्ट बहुत बुरा है, तो जा क्यों रहे हो? पॉइंट. अमेरिका बहुत बुरा है, बट अमेरिका का वीजा चाहिए. आज अमेरिका अनाउंस कर दे कि वीजा फ्री मिल रहा है आपको यूनिवर्सिटी में, यहाँ कोई बच्चा नजर नहीं आएगा. उसका रीजन ये नहीं है. उसका रीजन ये दे डोंट लव पाकिस्तान और दे डोंट लव दिस यूनिवर्सिटी. उसका रीजन ये है कि अपॉर्चुनिटी तो उनको सीख करनी है ना. ये जो हमें इनकलकेट कर दिया जाता है ना बिलीफ, और ये इसमें हमारे लीडर्स भी होते हैं, हमारे बहुत सारे और लोग अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए करते हैं. अमेरिका को हम माफ नहीं करेंगे, अमेरिका उसका यार है, उसका यार है, उसका यार है. हियर इज माय क्वेश्चन. अमेरिका सबसे ज्यादा आपका यार है, पैसा आपको देता है, आप उसकी आगे लेते हैं, तो क्या बकवास करने की जरूरत है? क्या हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं? हमारी सोसाइटी हिपोक्रेसी पे मबनी है और वो है. But I would like to come back to the point that I honestly started off on a very optimistic note, because there is a huge fan following and a huge fan base for morning shows. मगर types बदलती जाती है. तो for you, the perfect ingredients for a perfect show that you would like to see or you would like to host in the morning, what would those elements be? देखिए, मॉर्निंग की बात नहीं है. मैं अगेन वही बात करूंगा कि मॉर्निंग के अंदर अगर मैं अब देखता हूँ जो अब मैं शो कर रहा हूँ वो डिफरेंट है और मुझे इसमें करने में बहुत मजा आ रहा है. लेड बैक, मेलोड, वही दैट्स द एवोल्यूशन की टाइप्स जरूर चेंज होती हैं, मगर entertainment element, information element, it's always there, and that is why I think all of us, we still enjoy and we love these shows when they come on air. अच्छा, मुझे लगता है कि with all due respect, I think कि हम कुछ भी नहीं बदला है. जो हम लेट नाइट शो प्लान कर रहे हैं वो एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग है और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट बेस्ड है. देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि हमने अपने ऊपर खुल बहुत सारे चढ़ाए हुए हैं. हम रात को जो शोज देखते हैं और वो बड़े एंटरटेनिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. गेम शोज भी हमारे यहाँ होते हैं, हमारे यहाँ लेट नाइट शोज भी होते हैं. दे आर रियली ब्रिलियंट, दे आर रियली गुड. उसमें कॉमेडी भी होती है, उसमें गाने भी होते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आई थिंक एंटरटेनमेंट हमेशा एंटरटेनमेंट ही रहेगी, नो मैटर वेयर इट इज़, वेदर इट्स ऑन योर मोबाइल
और वेदर इट्स ऑन टीवी, वो एंटरटेनमेंट ही रहेगी. एवोल्यूशन हेयर एंड देयर ज़रूर आता है, इसमें कोई शक नहीं है. बिकॉज मुझे लगता है कि वो वाले मॉर्निंग शोज जो हम किया करते थे अब उनकी जगह नहीं है शायद. कल क्या ये फैशन की तरह रिपीट होगा और वो जगह आ जाएगी? Probably, but I'm no one to say that. हो सकता है आ जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि एंटरटेनमेंट की जगह हमेशा रहती है, as long as we are true to it. Absolutely. as long as हमको ये पता हो. चाय आ गई क्या? हाँ, दे दें. थैंक यू यार, आई एम सॉरी. नो प्लीज हैव योर टी. तो मुझे लगता है सिमल के उसकी जगह हमेशा रहती है और वो हमेशा रहेगी. That is so true. लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. आई थिंक कहीं ना कहीं चेंजेस आई हैं. और मैं खुद अब जो शो कर रहा हूँ वो इंफोटेनमेंट का शो है. बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट उसमें नहीं है. एंड देयर ह्यूमर इज़ देयर जस्ट टू गिव द रिलीफ. लेकिन आई थिंक बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो है, तो मुझे वो अच्छा लगता है करना. चेंज जरूरी भी है, आई बिलीव, फॉर एनीथिंग. ये तो हम चलें एक बहुत शो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं. चेंज बहुत ज़रूरी है, पर चेंज बड़ा महंगा पड़ जाता है कभी कभी. तब्दीली बड़ी महंगी होती है. हाँ, बड़ी महंगी होती है. We'll be moving towards a song while you enjoy. और हमें ये पता भी नहीं होता कि हमने क्या तब्दील किया. फिर 50 साल के बाद हम एक किताब लिखते हैं जिसमें पता चलता है कि हमने क्या तब्दील किया था, क्यों किया था. फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं. Your experience as a radio jockey, radio show host. मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी असास है. एंड आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि जैसे रेडियो डिडंट एग्जिस्ट इन माई लाइफ, आई थिंक आई वुडंट बी हियर. एवरी सिंगल डे आई गो टू माई रेडियो 8 to 10 एंड आई सिट इन दैट बॉक्स एंड आई टॉक टू पीपल. एंड आई थिंक इफ देयर इज़ अ थैंक यू दैट्स ऑन दिस साइड. बिकॉज मुझे नहीं लगता कि अक्सर लोग ये कहते हैं साहिर भाई हम आपकी वजह से शो सुनते हैं. वो तो सब अपनी जगह है, लेकिन जेन्युइनली आई थिंक रेडियो ने मुझे बहुत सहारा दिया. रेडियो मेरा वो कथारसिस है. रेडियो मेरी वो सच्चाई है. मैं बहुत ज़्यादा अपने अंदर रहने वाला आदमी हूँ. आई डोंट बहुत ज़्यादा मैं अपने लिए बात नहीं करता. रेडियो ने मुझे उस जगह सहारा दिया जब इंतहा से ज़्यादा मुश्किलात थी. देयर आर टाइम्स व्हेन शिकस्त तो रेख्त होती रहती है आप में और बेतहाशा होती है. तो जब मैं किसी शिकस्त के अमल से गुजरा तो रेडियो वॉज देयर. तो आई थिंक मेरी जो लर्निंग है लाइफ के बारे में वो सारी दुनिया से है और पाकिस्तान से है. तो रेडियो मेरे लिए सब कुछ है. रेडियो इज समथिंग दैट आई वुड नेवर लीव. रेडियो इज़ माई लाइफ. रेडियो शैल बी माई लाइफ. रेडियो विल बी माई लाइफ. और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एट द एंड ऑफ द डे व्हेन माई स्टोरी फिनिशेस, आई थिंक द बिगेस्ट चैप्टर ऑफ माई लाइफ इज गोइंग टू बी रेडियो. In which year particularly did you start doing radio? Simal, that was long time back. I think that was in मैं US में जब था तो that started in year 2000. Oh. So it's been 23 years. I came to Pakistan in 2005 and 2005 से मैं पाकिस्तान में रेडियो कर रहा हूँ and 2000 से मैं वहाँ रेडियो कर रहा हूँ. Right. Yeah, 2001. So I think it's been over 22 years. Excellent. And तो मेरे radio is second nature to me. And you've also seen radio evolve because like Very everything much so. else we just talked Very about, much so. it must have gone through phases as well. अब एक उसमें live sessions का element है. I mean people are not just listening to us, they're watching us live on our Facebook page as well. Podcast का एक element radio से जुड़ा हुआ मैं उसे इस तरह कहूँगी कि because it's very similar also in many ways. या जो एक मेरे ख्याल से heart to heart conversations usually radio broadcasters को आदत होती है radio stations में करने की. Somewhat I find there's a similarity between podcasts and that also. तो अभी how relevant do you think radio still is अच्छा, to this evolving world? मैं जो रेडियो करता हूँ वो अभी भी बड़ा ओल्ड फैशन है. बिकॉज मुझे लगता है कि पॉडकास्ट इज डिफरेंट एंड रेडियो इज डिफरेंट. It is. तो मैं कभी भी हालांकि मेरा एफएम ने मुझे अक्सर कहा है कि आप पॉडकास्ट के तौर पे इसको किया कीजिए, बट मैं नहीं करता. बिकॉज मेरा प्रेफरेंस जो है वो आज भी कि आपकी आवाज़ के ज़रिए आपका रिश्ता ताल्लुक़ बनता है. हम किसी भी गिवन 2 घंटे में 20,000 से ज़्यादा कॉल को एंटरटेन करते हैं. हमारे सिस्टम्स डाउन हो जाते हैं, इतने लोग सुनते हैं एवरी सिंगल डे. हैज़ रेडियो इवॉल्व्ड? येस, इट हैज़ आई थिंक. और अब रेडियो बहुत ज़्यादा अवेयर है और जो लोग आपको कॉल करते हैं वो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. और उसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया है, इंटरनेट है. ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है ये इतना तेज़ हो गया है कि अब आप और वो एक सेम प्लाटो पे होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं. जो आप बात कर रहे हैं वो उन्हें ऑलरेडी पता है या शायद वो आपसे कहीं ज़्यादा जानते हैं. तो टू मी आई थिंक अब रेडियो वैसा नहीं रहा जैसा एक ज़माने में था. वो भी बहुत अच्छा रेडियो था, बट हम जिन टाइम्स के अंदर अब हैं ये भी बहुत अच्छा रेडियो है. ये एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है. मुझे ये
वाला एक्सपीरियंस दूसरी तीसरी चौथी मर्तबा हो रहा है, तो आई डोंट नो हाउ दिस इज गोइंग टू बी, बट वैसे रेडियो जो है मैं प्रेफर करता हूँ, नो कैमराज है देयर, नो कैमराज शुड बी देयर, और ये हो माइक हो और उसके बाद आवाज़ जाए और लोग कॉल करें और फिर उसके बाद हम बात करें. Mashallah, mashallah, you're multi-talented. We've seen you be emotional, we've seen you being humorous, serious shows आपने host किए हुए हैं. Like, बड़ी मैं कहूँगी aspects हमने देखे हैं आपकी personality के. Which one would you say is the closest to your real nature? All of them. All of them. I mean, this is one life to live. All of them. मैं अगर अपनी ज़िंदगी को पहले देखूं तो I started from रेलवे कॉलोनी कराची कैंट, और जब मैंने वहाँ शुरू किया था तो मुझे नहीं पता था कि मैं एक दिन मीडिया में आ जाऊँगा. तो वहाँ से सफ़र जर्नी जो है वो जापान का है. वहाँ मैंने काम किया, पैसे जमा किए और पढ़ने के लिए बाहर चला गया. फिर वहाँ से चीज़ें की, जॉब्स की, फिर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये काम किया. तो आई थिंक ज़िंदगी आपको एक ही बार मिली है. तो अगर कभी मुझे एंटरटेनमेंट अच्छी लगती है तो मैं वो करता हूँ, जो दिल चाहता है बस वही करता हूँ. तो आई थिंक इट्स ऑल पार्ट ऑफ माई ओन पर्सनैलिटी. तो आई कैन नॉट से कि मैं जब पोइट्री कर रहा होता हूँ तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, जब मैं किसी को हंसा रहा हूँ तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है, जब मैं को बहुत सीरियस नेचर की. आई थिंक इट्स ऑल विद इन मी, और ये आपके साथ भी होगा. तो आई थिंक एवरीथिंग इज डियर टू मी एज लॉन्ग एज इट्स कमिंग फ्रॉम माई हार्ट. मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जो मैंने अपने दिल से ना की हो. Excellent, excellent. And now coming towards your PhD journey as well. It's difficult. It's not easy for a lot of people to continue learning. चले informal learning तो हमारी obviously चलती रहती है till our last breath. But formally, you know, starting, joining a program, taking it further. How is your experience going so far? And when did you decide that okay, you want to do a PhD? अच्छा, मेरे पास टाइम बहुत है. Because I only sleep 2 hours a day. 24 hours में से 22 घंटे में काम कर रहा होता हूँ. तो मेरे लिए टाइम बहुत, और 2 घंटे भी ऐसे होते हैं कि रात को 1 घंटे के लिए सो गए, फिर सुबह उठ गए, फिर उसके बाद 15 मिनट यहाँ सो गए, 20 मिनट यहाँ सो गए, 20 मिनट. तो एज लॉन्ग एज आई गेट माई 2 hours स्लीप आई एम ऑल राइट. तो यूजुअली जो रिसर्च होती है वो रात के वक्त होती है. शाइस्ता ने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था इस पे ना, तो वो आई थिंक आई कैन से दैट. तो एक दिन हम सब ऐसे ही बैठे हुए थे, नया मैंने PhD शुरू किया था. तो वो सुनती रही देख के ना, मैं अम्मा को बता रहा था, बहुत एक्साइटेड था कि अम्मा आई एम डूइंग दिस स्पेस एंड टाइम के बारे में बात कर रहा हूँ कि स्पेस एंड टाइम और डिफरेंट फिनोमेना और एम्बेडेड है ये फला. अम्मा इज वेरी इंटरेस्टेड. तो शाइस्ता मुझे देखती रही, इसके बाद कहती है, वो कुत्ता कहाँ मिलता है जो तुम्हें काटता है? क्या मतलब है तुम्हारा? कहने लगे, यार तुम कभी अपने लिए टाइम तो निकालो. मतलब तुम, ये क्या पागलपन है कि तुम्हारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है. तो आई थिंक लाइफ हैज़ बिन लाइक दिस फॉर मी. मैं ये मुझे जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. मीडिया में मैं काम करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो आप टेलीविज़न या रेडियो पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दरअसल आप वही हों. तो आई थिंक PhD मेरी 2022 में शुरू हुई थी, 2021 में शुरू हुई थी, एंड सो फार इट हैज़ बीन रियली गुड. हम सोहो के अंदर थे, सोहो न्यूयॉर्क में, वहाँ थे, कैफ़े में बैठे थे. तो मेरे एक दोस्त थे माइकल ओडाम्बो, नाइजीरिया से उनका ताल्लुक है. तो वो टॉकिंग अबाउट समथिंग एंड ऑल ऑफ अ सडन वी स्टार्टेड राइटिंग. हमने कहा 1 महीने के बाद हम उस पर रिसर्च करेंगे और एक्सचेंज करेंगे. तो हमने कुछ चीज़ें एक्सचेंज की, उसके बाद वी बोथ अप्लाइड, वी बोथ गॉट एक्सेप्टेड, और वहाँ से रिसर्च शुरू हो गई. तो दिस इज हाउ इट हैपेंड. Excellent, excellent. And the choice of subject, choice of field also, I must say, is very interesting. Well, it was intriguing for me because I think is. astrophysics is something that I was always good in physics, but astrophysics was very close to my heart. And बहुत challenging है, different लगती है. And I think आपको खुद ही पता चलता है कि जो कायनात बनी है, इसके असरार, इसके रुमूज़ क्या हैं, और जो यकीन आपका खुदा पे होता है वो इतना ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि मतलब आप लिटरली, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझसे आप 10 साल पहले ये पूछती तो मैं मुसलमान था और ज़ाहिर मुसलमान हूँ. आप आज मुझसे पूछ रही हैं तो मेरा इस बात पे कामिल यकीन पहले भी था और उससे कहीं ज़्यादा अब है, और मैं कहीं नहीं डरता इस बात का इज़हार करने से कि खुदा इस कायनात का खालिक है. और एस्ट्रोफिजिसिस्ट को लोग कहते हैं कि शायद उनका खुदा पे बिलीव नहीं होता. ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आपका बिलीव अगर नहीं है ना खुदा पे, तो फिर आपका किसी चीज़ पे बिलीव नहीं हो सकता. Without proving God, you cannot prove anything. Absolutely, absolutely. Our target audience, of course, are the young and talented students of Information Technology University. तो आजकल आपको पता है freelancing is also on the rise. It's getting popular day by day. It's good for us. It's good for the kids also. And yet they have to continue their studies side by side also. So you, of course, are a very busy person. आपने education भी साथ continued रखी throughout, and you've been working also so actively.
उस हवाले से कोई टिप्स, कोई मैसेज, एनी वाइज वर्ड्स यू वुड लाइक टू से टू द स्टूडेंट्स? आई थिंक हमारी जो यंगर जनरेशन है वो हमसे बहुत बेहतर है, मुझसे तो बहुत बेहतर है, बिकॉज आई थिंक हमारे पास विजुअलाइजेशन कभी भी नहीं थी, हमारे पास इंफॉर्मेशन का फ्लो जो था वो बहुत आहिस्ता से पहुंचता था। एंड आई थिंक हमने बड़ी कहानियाँ सुनाई अपने बच्चों को कि हमने अपने ज़माने में ये किया, अपने ज़माने में वो किया। हमारे ज़माने में इतना कॉम्पिटिशन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। अब के बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, बहुत कुछ उनको सबसे पहले अपने आप को प्रूव करना होता है और इसके बाद लोगों को प्रूव करना होता है। तो आई थिंक इनको बजाय कुछ कहने के, आई थिंक दिस इज़ द टाइम दैट आई शुड स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देम। एंड व्हाट आई, बिकॉज मेरे पास मेरी एक कंपनी है जो स्किन केयर ब्रांड है, उसमें 111 एम्प्लॉइज़ काम करते हैं। दे आर ऑल यंग किड्स एंड आई कैन गारंटी यू दिस, जितना कुछ मुझे उनसे सीखने को मिलता है, आई थिंक वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। वो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करते हैं, अपने लिए टाइम भी निकालते हैं, अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहे हैं और अपने घर को सपोर्ट भी करते हैं। सो आई थिंक हमको सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट है और बड़ों से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने बच्चों पे ट्रस्ट करें प्लीज़, और उनको करने दें वो जो करना चाहते हैं। लेट देम एक्सपेरिमेंट। हम जब तक अपने बच्चों को एक्सपेरिमेंट से नहीं करने देंगे और एक्सपेरिमेंट से रोकेंगे, तब तक वो ब्लॉसम नहीं कर सकते। आप उनको करने दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हम हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान का मुस्तकबिल। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल यंग बच्चों को दीजिए, बिल्कुल, देखिए वो क्या करते हैं। Absolutely. और अफसोस की बात यह है कि इतना ब्रेन ड्रेन है इन दिनों कि उसमें पता नहीं चल रहा कि किसे यहाँ रुकना है, किसे यहाँ जाना है। लेकिन एक बार अगर ये वाली कम्युनिटी, जिसको हम, ये वाला पूल इकट्ठा हो जाए, जिसको हम यूथ कहते हैं, ये पूल इकट्ठा होकर पाकिस्तान के लिए काम करने लगे, मेरे ख्याल में इससे बेहतर कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती। Absolutely, absolutely. Having done so many things in your life so far, you've directed, you've acted, you've hosted, you're doing your PhD. I'm talking about that again. Acted because अपना पैसा लगाया था, वरना काम किसी ने नहीं दिया था। No, but you do so many things so brilliantly. What part of it did you enjoy the most? रेडियो। रेडियो। Oh, love. रेडियो से ज़्यादा कुछ नहीं। असल में मुझे ना, ये तो मैं बहुत तैयार होकर आपके पास आ गया हूँ, बिकॉज आज आना था यहाँ पे, वरना मॉर्निंग शो के बाद मैं अपना मैं जीन्स में होता हूँ, टी शर्ट में होता हूँ। तो आई एम वेरी सिंपल मैन एट हार्ट, और मुझे ऐसे लगता है कि रेडियो का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि कोई देख नहीं रहा आपको। तो यूर जस्ट सिटिंग देयर और माइक आपके सामने है, यूर टॉकिंग फ्रॉम योर हार्ट। तो आई थिंक वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रेडियो समथिंग दैट आई एंजॉय। एंड व्हिच बिट डिड यू थिंक वाज चैलेंजिंग द मोस्ट? सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग थिएटर। आई डिड थिएटर, बहुत अच्छा थिएटर किया, यूएस में किया, एक पाकिस्तान में भी किया था, वेरी सीरियस थिएटर। आई थिंक वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बिकॉज यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन योर टोज, एंड आई थिंक एक्साइटमेंट भी वही है, वो थ्रिल जो है ना, वो आपको वहीं पता चल जाती है कि क्या आपने किया है। तो आई थिंक मोनोटोनस टीवी है, और बहुत मोनोटोनस है, बिकॉज यू नो द सेट, यू नो द लाइट्स, यू नो द पीपल, कंटेंट थोड़ा सा चेंज होता है, बट बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं। इट्स द ईजीएस्ट मीडियम, बिकॉज आपको बहुत सारे लोगों की हेल्प होती है, कैमरामैन की हेल्प होती है, स्पॉट बॉयज़ की हेल्प होती है, रिसर्चर्स की हेल्प होती है, बहुत सारे गेस्ट की हेल्प होती है। तो ये सब बहुत बहुत अच्छा होता है। रेडियो इज़ बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट मीडियम, और थिएटर इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग वन। And you've worked in films as well. उस हवाले से कुछ experience, do you plan to step back in? What would you like to say? I have got couple of scripts जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नहीं है वो, so I'm not investing anything. तो we'll see. अभी मैंने decide नहीं किया है, because I think film takes a lot of time away from everything. तो वो बहुत मुश्किल होता है। इवन एज एन एक्टर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे पास अगले 10 महीने मुझे पता है मुझे करना क्या है, एवरी सिंगल डे माई डेज आर स्पोकन आउट। तो मैं बीमार हो गया था पिछले दिनों, तो आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो वो 9-10 दिन जो गुजरे थे वो बड़े कर्ब में गुजरे थे, बिकॉज लिटरली इट वाज जस्ट हॉरिबल फॉर मी टू स्टे इन बेड, स्टे एट द हॉस्पिटल। मैं वैसा आदमी नहीं। तो मेरे ख्याल में आई डोंट नो इफ आई एवर will do another film or not, provided कि मेरे पास टाइम हो। अगर मेरे पास टाइम होगा, there's this young gentleman who came from London and he wanted me to work in his film, very good script. Again, time permitting. एजाज असलम मेरे पीछे पड़े हुए हैं, खुदा का वास्ता मेरा एक छोटा सा ये प्रोजेक्ट है, ये कर लो। एंड एजाज इज वेरी डिफरेंट, लेकिन अगेन टाइम इज स्कैर्स, तो वो मेरे पास वो नहीं है। So finally, where will we be seeing you in the next say few months or in 1 year? क्या projects, क्या pipeline में है? देखिए अभी तो चैनल 24 को मैंने साइन किया हुआ, तो चैनल 24 पे मॉर्निंग शो है, फिर इसके बाद हमारा लेट नाइट शो जनवरी में शुरू हो रहा है, दैट इज आल्सो फ्रॉम चैनल 24। वहाँ देखेंगे रेडियो। And you'll be continuing both of these side by side, morning and the late night. जी बिल्कुल। लेट
night day Interesting. twice a day, twice a week, and then 5 days वही है. Plus radio show है. Plus I think I may get into doing podcast. I may. वो पिछले कई साल से पीछे पड़े हैं, so I have no idea. लेकिन other than that, I think मेरे लिए मीडिया सिर्फ उतना ही है जितना टाइम होता है. बाकी तो हम वी आर ट्राइंग टू क्रिएट जॉब्स फॉर पाकिस्तान. हमारा एक पोर्टल है जो जून के अंदर लॉन्च हो जाएगा. Excellent. और पहले फेज में हम 10,000 जॉब्स दे रहे हैं और उसकी जो कैपेसिटी मैं बढ़ाना चाहता हूँ एक साल में वो 3.5 लाख जॉब्स हैं. तो दिस इज it's basically somewhere in the middle of Amazon and Alibaba. उसका मुरक्कब है वो. हाँ, तो it is launched right now. और अभी उसमें 20 एक्टिव जो सेलर्स हैं वो काम कर रहे हैं और जून के अंदर हम इसे लॉन्च करें. इसकी मार्केटिंग कैंपेन पे जाएंगे अब अप्रैल के एंड में. तो ये मेरा ख्वाब है कि हम कुछ बेहतर कर लें मुल्क के लिए. Looking forward to it already. And now finally, your message to our youngsters, to our audience, our students over here at ITU, what would you like to say? Keep your head high or make sure that let people doubt you no matter how much they want to doubt you, but don't ever doubt yourself. Don't ever doubt yourself. Let them say whatever they want to say. I've never cared about what people think of me or they would whether remember me or not. ये सब बड़ी irrelevant चीज़ें हैं, इस पे ध्यान मत दीजिए. Whatever your heart says, just do it. और पूरे पैशन के साथ करो. इकबाल ने कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है. तो बस यहाँ से जो कुछ निकले ना कर जाओ. Just do it. नाइकी का एक लोगो है, वो कहता है just do it. So just do it. Don't worry about the people. दुनिया में लोग हैं और वो इसीलिए बने हैं कि वो आपकी मुखालफत कर सकें. तो उनको जगह मत दीजिए अपने दिल में. कहने दीजिए उनको कि आप ये नहीं कर सकते. कहने दीजिए. जिस दिन आपने ये कहना शुरू कर दिया और फील करना शुरू कर दिया कि आप नहीं कर सकते, उस दिन प्रॉब्लम होगी. तो बस just do it. Wonderful words, very useful, very insightful. Once again, thank you very much for taking out time for ITU FM from your busy schedule. We know how busy you are, but we're so grateful for having you here. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया समान. Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, for staying tuned to ITU FM 90.4. आप इसी तरह हमारा साथ देते रहेंगे. कोई फीडबैक हो शो के हवाले से तो do join us on our Facebook page, ITU FM 90.4. Thank you for watching us live. Thank you for listening to us live as well.